on that floor that is too fine. Buckets up, auto-tune crime. But if you can do it right, cleaning time, it's cleaning time. Thank you so much for making it. It's so nice to be here. ले लो जितना फोटो पीटो जो करने का है कर लो. पोज दूं लो पोज लो. टच किया तब रियलाइज हुआ हार्ड निपल. सही. I don't know if you can see it. It's there. अगर अचानक छेद हो गया तो आंटी का आंख है ठीक है. While you take your photos or whatever, a couple of quick questions. How many of you are returning for a show of mine? Okay, good. पहले इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया. Proud of you. How many of you are watching your first ever live comedy show? Yeah, wait. Why me? Why am I responsible for your comedy virginity? Why? This is unsafe sex. This is. Watching me first is like saying virginity lose करना है बहुत rough sex. ऐसा fisting नहीं तो हुआ ही नहीं. अच्छा last question. कोई show description पढ़ के आया है? यही डर रहता है मेरे. ग्राहक सब भेड़ बेंचोत. किसी को belly dancing है 1.5 घंटा belly dance करेगा मैं अभी देखो. गांड मस्ती में ऐसा थप्पड़ मारता है ना वाइब्रेट होता है 7-7 मिनट. You think I'm fucking with you? That's why I switched to shirts. मैं ऐसा खोलता है ना ऐसा घूंघट में एक आंख वाली आंटी लगती है. Okay, शो का नाम तो पढ़ा ना सब लोग? Okay, good. Then you know. ये गंदा है. Nasty is English for छी. And since this is Pune, घानरडा. Dude, I ask all these questions though because I wrote this entire show because एक दिन एक अंकल नहीं पढ़े थे डिस्क्रिप्शन. ठीक है. मैं कहानी बताता. सैड स्टोरी है मेरे लिए तुम्हारे लिए फनी है वरना क्यों बोलेगा. तो ये कहानी स्टार्ट होता है नोएडा में. नोएडा you know नोएडा where all sad stories start. Yes, good for you. Noida is where all sad stories start. They start in Noida, they end in Ghaziabad. क्योंकि बॉडी उधर ही मिलता है ना. I'm kidding. This is like 2018 का. अभी तो अपडेट अभी तो फ्रिज में मिलता है. But this is like this story is back in 2018. Okay, 2018 if you remember तभी वो फेस्टिवल मीटू चल रहा था याद है दिवाली के पहले आता है. हाँ. I had just come back from Dubai. I had gone to a friend's wedding. My friend Khridushman was getting married. It's a पूरा अलग शो है बाद में बताऊंगा. But I had just come back and I had finally stopped writing jokes for the audience. I started writing jokes for my own happiness. So I wrote this one joke around Me Too, like around consent. That was the primary subject, and I was very proud of myself. उसमें एकदम ऐसा हैंडल किया उसको मतलब प्यार से एकदम मस्त लिखा मैं गोरे लोग हंसे और क्या चाहिए. And I came to Noida and I was doing this lineup show and there were only like 4 comedians on the lineup. I was the last comedian on the lineup and it was a very like perfect show to try this kind of joke. Because क्या है 17 लोग थे. नहीं 17 में नहीं 14 लोग थे. हाँ 14 is the perfect number to try a new joke ना. 14 लोग में दिखता है ना 28 आँख. दिखता कौन खुश है किसके आँख में मौत है. Like सब दिख रहा है. खड़ा हो गया बीच में. It was going really well. It was going surprisingly well actually. Because out of the 14 people, 11 people were having a great time. Which for me is ऐसा like upper limit. Like तुम लोग को idea नहीं है. Like आज इतना लोग जमा हुआ है. वरना मैं बहुत niche comedian है समझ रहे? मैं नहीं है mainstream. नहीं seriously तुम लोग कहाँ हैं तुम्हें पता नहीं है. अगर बस्सी हाथ है ना तो मैं बगल के बगल का बाल है. तो समझ ऐसे का. Yeah. In terms of audience size. So 11 people having a great time. I was very proud of myself. 2 people, बुड्ढा बुड्ढी अंकल आंटी not enjoying at all. आंटी 2 बारी शो में ऐसा की. इतना किल नहीं किया मैं आंटी क्या कर रही. The 14th के जो 14वां is a very weird way to say 14th 14वां. The 14th guy वो जो मजे ले रहा था वो मैं नहीं ले रहा था वो मुझे. वो मिनिमम ड्रग्स था वो. तुम मानेगा नहीं बीच शो बंदा मुड़ के लाइट को देख के हंस रहा है यार. पहले मुझे लगा वो
एक जोक पीछे, फिर पता चला शो ही अलग है। ताली वाली मार रहा है, मैं कर रहा है शब्दों की कॉमेडी, बोल रहा नहीं फोटोन की कॉमेडी देखो भाई, फोटोन। गुड शो, आई वाज वेरी हैप्पी विद माय सेल्फ। द 14th guy gave standing ovation also। लाइट को दिया पर मैं ले लिया। मैं बैक स्टेज गया, मैं अपने आप से एकदम खुश ऐसा, मैं मिरर में देखा, बोला प्राउड ऑफ यू बेबी। और उतने में बाहर अंकल को मुझे मिलना था। अभी देखो हमारे बाप की उम्र के जो अंकल है ना, आई डोंट नो आज कितने, मेरे को खास दिख नहीं रहे। ये लोग का थोड़ा एंटाइटलमेंट है जिंदगी में ना, वो लोग को आदत है, हमने आदत बिगाड़ा है ना। देखा ना अपने बाप का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, चाय खत्म हुआ, ऐसा कप हवा में रखेंगे बस, कोई तो ले जाएगा ये हाथ से। 5 मिनट एक दिन मत लेना, गिरा देगा, बोलेगा अरे कौन गिराया कप यार, साफ करो इसको। This guy wanted to see me. He didn't ask the staff. He didn't wait for me to come out of the green room. This guy immediately just went, आकाश! तुम लोग कभी कान फटाना? Bro, मैं तेरे को फ्लिंच करते देखा, तेरा नाम आकाश भी नहीं है, बोल। It's pre-programmed in your brain. तुम्हारे बाप के उम्र के आदमी की आवाज में तुम्हारा नाम इस टोन में, मैं सोच रहा मेरा बाप नोएडा मारने आया मेरे को, dude। गाजियाबाद का क्या बोला? मैं आधा आंख निकाला बस देखने को कि कौन चिल्ला रहा है मेरे को ऐसे, आधा आंख। उतने में उसने आई कांटेक्ट मार लिया, आई कांटेक्ट मार के चिल्ला रहा है, आकाश हाउ कैन यू डू ब्लो जॉब जोक्स ना। मैं तुमको 2 मिनट पहले बोला जोक कंसेंट का था, बराबर ब्लो जॉब भी थे घर पे, पर घर उनका नहीं हो जाता है। सेकेंडली अंकल 60 साल के, मतलब अंकल का फेफड़ा भी 60 साल का, मतलब 2 फेफड़ा, तो 120 साल का फेफड़ा है वो आकाश को दे दिया मेरे को। फिर वो हाउ कैन यू डू ब्लो जॉब जोक में हाउ तो आया ही नहीं। जस्ट लाइक यू, मैं एंड का जोक्स इग्नोर कर दिया, मैं बीच का पकड़ा, मतलब बीच का सेंटेंस। गंदे लोग, आई लव इट। मैं बोला कौन फ्री में नहीं। Hey, if you're good at something, don't do it for free. Problem is, uncle didn't hear what I heard him say. Uncle ने तो अपने फेफड़े से अपने कान में सुना ना। अंकल ने कंटिन्यू किया कन्वर्सेशन। अंकल बोल रहे अरे बट मेरी बीवी भी तो है। उनको देने गए कि उनको देखने गए? ले देखो अपना देखने का रेट फिक्स है 250 रुपया बराबर, बट अभी देने को आंटी का हार्डवेयर क्या है कि मैं सॉफ्टवेयर आजमाऊं? क्या पुर्जे लाए हो भाई, दिखाओ। I tried to explain to uncle the whole thing. The joke is not about blowjobs. The joke is about something larger. I tried to explain to him context. ये सब पूरा रैन मार्टिन खत्म किया मैं अंकल को। अंकल घंटा कुछ सुने नहीं। और मेरे को अंकल के लिए एक एंड पे बुरा लगा। I felt like I fucked up little bit. And I'll tell you how. I feel like, see, you have to understand. I don't care if you don't find me funny. ठीक है, मैं ये 12 साल से कर रहा हूँ। कट दो। इसलिए टिकट का पैसा एडवांस में लेते हैं। ठीक है? But I don't wanna fuck your night. You know what I mean? Because I know that you have plans after this. मेरे को मैं यही है मेरा प्लान। मैं अभी घर जाके हिला के सो जाएगा। मेरे को कुछ नहीं करना है। But you have plans. I don't wanna fuck your plans. That's a line I can't cross. You know what I mean? अंकल ने भी प्लान बनाया था। बोला बीबी को घुमाएगा मस्त, शो पे लेके जाएगा। Who knows where the night goes? है ना? या तो घर या तो गाजियाबाद। So and now all of a sudden he has to listen to some guy talking on stage about things he's not getting at home, right? Blowjob nahi, consent. And obviously uncle is upset. I understand uncle is upset. It's okay. On the other hand, ये बुड्ढा काफी गांडू है। तुम अगर किसी को देखने जा रहे हो तो देख लो ना किसको देखने जा रहे हो। You know what I mean? मैं कोई ऐसा फॉल्स एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा है, ऐसा इंटरनेट पे श्रद्धा का बात करके यहाँ लंचूत नहीं पेल रहा है मैं, देखो। हाँ, मेरा बहुत स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड पेलना है, कोई डबल स्पीक नहीं है, कोई फॉल्स एडवर्टाइजिंग नहीं है, बेसिक। मेरे को गूगल करो, पहला रिजल्ट आता है सुसु जोक्स, हाँ, फिर आता है आकाश गुप्ता, हाँ वो। I just asked this to see कि कोई गलती से नहीं आ गया ना।
एक तो चेहरे कंफ्यूज लगते हैं, इस पे दाढ़ी कब उगाया? ये लौड़ा क्यों बोल रहा है? So I realized that I can't just do the consent wala joke on its own. I need to do something in front of that joke, like some kind of something to absorb the impact, absorb the tension. You know what absorbs better? I wrote padding. I wrote so much padding. मैं padding लिखा, फिर padding नहीं चला तो padding के लिए padding लिखा मैं, और padding के लिए padding लिखा मैं. Basically next 1 घंटा padding है. Okay? End में है consent वाला joke. वो ठीक है. Padding जो माशाल्लाह बन गया है ना, मैं पुनः आता है विस्पर थरथराता है भाई. And the thing is, like, you know, when I wrote Nasty as a show, I realized, okay, this is a good space for me to be in. Then I got inspired. I said, fuck, why am I only writing this? दिल में तो अंधेर है, तो मैं और 1 घंटा लिख दिया डार्क करके. अभी Nasty एक है, डार्क एक है. अगर तुम Nasty नाम पढ़ के भी आया और तुम्हें लंड से हो रहा है, तो मैं कान में डाल देगा, ठीक है? क्योंकि ये मैं लाया थैली भर के. एक भी इंसान का नहीं है. मैं बहुत नेशनल पार्क घुमा है गाइस. कभी सांबार का लड्डू देखा है? एकदम ड्रमस्टिक जैसा दिखता है. ले लो सांस ले लो. The truth is, I just don't like relatable humor. Like I'm tired of it. I'm tired of seeing Instagram पे सब लोग ऐसा relatable, सब लोग clean, सब लोग family friendly. सब मैं है नहीं. मेरे को बनने का ही नहीं. मेरे को relate ही नहीं करना है तुम्हारे साथ. क्योंकि मैं रहा है मेरे दिमाग में. तुम इस आदमी से relate ना करो तो ही अच्छा है. And plus, like I understand why. I also understand why people like relatable comedy. Like you like relatable comedy, right? You like to relate, है ना? अच्छा लगता है ना? तेरे लाइफ में कुछ हो रहा है और उसका बात हो रहा है, बराबर है कि नहीं? अच्छा लगता है ना? है ना? हाँ, ट्रिक क्वेश्चन ही अच्छा लगता है, है ना? कि तेरे लाइफ में कुछ हुआ और कॉमेडियन है और वही बात किया, बराबर ना? तो नया कब सुनेगा? पिंचोत वही पुराना भार में बोला धनिया लेके आओ, क्या है ये? पागल नहीं हो जाता तुम लोग ये सुन के? मेरी माँ ने मेरे को कभी धनिया लेने नहीं भेजा, ठीक है? मैं रिलेट नहीं कर रहा. मेरी माँ ऑर्गेनाइज थी. Fucking can't stand it, dude. I hate relatable shit. I cannot. I don't even like dirty jokes. Dirty jokes are also fucking lazy. क्योंकि dirty joke में क्या होता है ना, clean joke होता है और फिर ऐसा अब्बास मस्तान माफी कैसा twist मार के लौड़ा घुसा. अब्बास मस्तान नहीं घुसा रहे. पर घुसा. Same. I do the same fucking thing. The माने लाया, the बोला धनिया लाया is an observational joke, which is not even a joke really, but let's do the same thing dirty. Okay? We'll see how it works. Okay? माँ आई कमरे पे. माँ बोली आकाश. ओ आकाश. आकाश हिला. बताओ. जादू ना लगे, ऐसा धनिये में से लड़ प्रकट किया. तुमको धनिये के साथ मिर्ची के अलावा कुछ मिला है आज तक? But it's so lazy. You deserve better for whatever ticket you bought this for. I don't want to be a 700 rupee comic that you don't end up laughing at. You know what I mean? I want to fucking bring it. That's why I like nasty jokes. Nasty वो है ना, वो है बहुत सा. वो है. अचानक ऐसा 300 लोग जब सुन्न हो जाए ना, वो है nasty. I'll give you an example. Same joke, we'll save time. माँ आई मम्मी. आकाश. आकाश. धनिया लेके आ. तुम्हें गया धनिया लेने जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को वापस आना था ना जल्दी जल्दी. हाँ तो कोई बीच रात तुम्हें छोड़ दे. I don't know how it works with vaginas, but लंड ऐसा कहानियां तुमको घूरता है क्या? इसो कैसो यार? You have to negotiate. Like bro, please bro, और खड़ल करके छोड़ देगा. अरे प्लीज look. अरे मेरे हाथ में थोड़ी. अरे तेरे हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में? प्लीज अंदर जा. लौड़ा अंदर नहीं जाएगा. चल डाल दिया तलवार को मांझ में और फिर मैं भागने लगा. हाँ ऐसे ही भाग सकता हूँ, पर इधर तक आता है बहुत मुश्किल.
नहीं तुम हंस रहा है पर ये जोक में ही है, ऐसा लाइफ में नहीं है। और लाइक जोक में भी बहुत तकलीफ होता है क्योंकि बैठ गया एक बार तो पूरा सब बिठाड़ के रखना पड़ता है मेरे को अलग। पॉकेट बनाया मैं सिलवा के एकदम बॉक्सर में। अच्छा उधर में बोला भाई जल्दी धनिया दो, उसने धनिया दिया। बोला मिर्ची किधर है, बोला वो तो लेके आओ। बोला कांड रात बोल मैं दरवाजा खटखटाया तो कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा यार। तो मैं बेल मारने लगा तो कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा यार। मैं क्या कर रहे हैं मम्मी पापा यार। मैं चाबी घुमाया, मैं दरवाजा खोला, बताओ मेरे पापा सेक्स कर रहे हैं। नेस्टी एंड में कैसा गंदा गंदा लगने लगा। तुम्हें पता था क्या आ रहा है फिर भी तुम लोग इतने में स्क्विमिश हो रहा है तो डार्क तो तुम सहन ही नहीं कर पाएगा डूड। एक चखोगे क्या? कोई ज्यादातर लोग हाँ बोल रहे हैं, एक दूसरे ना बोल रहे हैं। दिस इज अ वियर्ड सिचुएशन फॉर मी बिकॉज़ इट्स लाइक डेमोक्रेसी वर्सेस कंसेंट। ओके चलो कर देते, we'll do same joke same time। तलवार मांझ में धनिया मिर्ची मिर्ची धनिया चाबी मम्मी पापा सेक्स कर रहे हैं। मैं हिलाने लगा। What? Fuck you! You knew what was coming, motherfuckers. I was coming. Mom, Dad, if you're still watching, please stop watching. I told you not to watch this show. क्या कर रहे हैं तुम लोग? अबे बहुत गंदू था सर जी। जस्ट मैसेज दे दिया, अभी देखा तो दिल का दौरा मेरे पे नहीं है। Dude, I love sex jokes. I love sex jokes. I think they are magic in India because India में sex joke कैसे चल रहा है? जिस देश में लोग इतना चौधरे, अपने को आदत कैसा नहीं हुआ अभी तक? तुम्हें सेक्स का नतीजा रोज दिख रहा है, तुम रास्ते आईने में देख लो। फिर भी लोग ऐसा दो टाइप का ऑडियंस मिलता है। एक ऑडियंस जो ऐसा बोलता है आकाश तू कर रहा, तू कर, हम कर रहे हैं, तू बात कर रहा है, बोलो। और दूसरा ऑडियंस लाइक ओल्डर पीपल, दे आर तो कंप्यूटर वाला कौन सेक्स कर रहा है? अंकल आपके 8 भाई बहन है क्या? कौन सेक्स कर रहा है मतलब? And you're also like, you're the liberal lot, but you're not as liberal as you think you are. You're okay as long as I talk about you having sex or your friends having sex or me having sex, you know what I mean? But the minute I talk about your parents, मत करो ना visualize. कौन बोल रहा है? मत करो, गंदा मत करो, but at the same time accept करो। हाँ भाई तू इधर है तो घर पे कौन है? भाई कोई कितना केबीसी देखेगा रे? कभी तो आंटी अंकल को मुड़ के बोलेगी ना, चलो अगला सवाल 1 करोड़ के लिए, मेरा जी स्पॉट किधर है? अंकल अलग स्ट्रेस में, फोन अ फ्रेंड, फोन दीपक क्या चटने का था? दीपक जल्दी। Whenever I hear people like talking like that, Akash, please don't mention my parents having sex, please. It's so ew. पुणे में ew अलग होता है, मुझे पता है। So dirty. आकाश में ew तो नहीं बोल सकते ना, तुम्हारा origin story है। है कि नहीं? तुम अपना खुद का origin story deny तो नहीं कर सकते। सुपरमैन आके बोलेगा, अरे मैं तो कोथरूड से, घंटा तू कोथरूड से। क्लार्क केंट हो सकता है, सुपरमैन क्रिप्टॉन से। ये कैसा चलेगा ब्रो? you because uncle and no Akash, no, my parents had sex once, they had me, and they never had sex. वो सब
सही है, पर फिर ये तेरा छोटा भाई आया किधर से यार? डाकिया डाक लाया कि शशांक लाया? It's so stupid, dude. We don't talk about it enough in this country. And I understand why you have some shame about this. I get it. And like I understand कि मैं भी ऐसा comedian जो ज़्यादातर लोग नहीं सुनेगा इस सब। मेरे को पता है, मेरे को मेरा consequences पता है, मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है. You know what I mean? Like, did anyone watch No Smoking? Anyone watch my last special? जो लोग नहीं देखा है आज घर पे जाके देखेगा, अगले टाइम असाइनमेंट सबमिट करना है. उसमें ना मैं बेसिक मेरा एक लाइफ का मोटिव है, मैं बोलता है मेरे को 7 कॉन्टिनेंट पे लंड बोलना है, ठीक है? आई नो इट्स डम, पर मेरे को बोलने का है 7 कॉन्टिनेंट पे लंड हो सके तो लौड़ा भी चलेगा. My dad watched the whole thing. I talk about a lot of things in that special. I talk about addiction, I talk about Instagram, I talk about like growing up in life and fucking health and all these things and shitting in different countries obviously. That's health by the way. बट मेरे डैड ने पूरा 1 घंटा देखा, मेरे को बोलता आकाश मैं पूरा घंटा देखा, मेरे को लौड़ा ही दिख रहा है हर जगह, मेरे को और कुछ सुना ही नहीं दे रहा. वही तो तुम्हारे जनरेशन का प्रॉब्लम है ना, तुम भाषा के बेसिस पे जज कर रहे हो. लौड़ा उठा के उसके पार देखो, पूरा दुनिया है. और मैं समझ रहा हूँ लोग को क्यों प्रॉब्लम है गाली से स्टैंड अप में. देखो सिंपल चीज है, देखो अगर ऐसा गाली है ना 2 टाइप का होता है स्टैंड अप में ना. एक होता है जब गाली पंच लाइन, अगर मैं आके बोला ये बड़ो कैसा है और तू हंस दिया, नहीं हंसने का है पर तू हंस दिया. I understand why you're laughing because तुम लोग का आदत नहीं है ना. ऐसा तुम कभी देखा है पब्लिक फोरम पे कोई आदमी आके सब स्कूल में प्रिंसिपल आके ओ बड़े लोग क्या चल रहा है, नहीं होता है. ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. कोई भी चीज का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले तो फनी हो जाता है. राजू श्रीवास्तव का बिटता याद है, वो शाहरुख खान आके अंगूर खरीद रहा है. नहीं याद है, चलो रहने दो, ये काट देंगे. The idea is very straightforward. Take anything out of context, it's funny. I don't blame you for laughing at it, but that's a problem because it's very easy. You know what I mean? I don't do that. I do something slightly different. I try to use gali as a punctuation. Yeah. Gali is a great punctuation. We all use gali as a punctuation only na in life. As a fuck my life. और क्या बोलोगे? मतलब और कोई है नहीं ना चीज उधर बोलने के लिए. Gali is beautiful that way. You watch any of my stand-up, it's all rhythm dude. It's a fuck, tuck, tuck, tuck. समझ रहे हो? Fuck it all. Tukdum. Motherfucker. टक वो टक को स्पीड अप करके देखो, टक हो जाता है तुम्हें. तुम्हारा बोलने का था, ये वर्ड सेंसर करना पड़ेगा यार. ये देश and nobody means what they say when they say गाली. They say it because no other word works. तुम कभी रास्ते पे झगड़ा किया है किसी के साथ, है ना? कभी तो किया लाइफ में. तो क्या बोलेगा? तुम बोलेगा तो मैं क्रोधित है. घर पे जाके क्रोधित रहना फिर बेंच. सफेद भाषा नहीं चलेगा इधर भाई. कुछ गंदा मांगता है तेरी माँ है तो सामने वाला को भी भय लगे ना, क्या मेरी मम्मी को क्या हुआ. None of the words mean anything. You don't say fuck. कभी बोला ऐसा fuck you और फिर सेक्स किया? नहीं ना, नहीं. बात का बाद में देख लेंगे, पर अभी मैं गुस्से में. It's the same with motherfucker. Like, hey, call me a motherfucker. पीछे से ही बोल दिया, कहाँ चुकी है क्या है? गले में लेके आया क्या विश? और चल अभी जो भी है अननेम्ड स्ट्रेंजर इन द ऑडियंस को मदरफकर बोल दिया प्यार से, अब तेरा ही गलती है क्योंकि अननेसेसरली तूने तेरी माँ को भी इन्वॉल्व कर दिया. हाँ ना? Because our motherfucker is what? So obviously it's one of our moms, right? You're talking about. हाँ है ना, बराबर ना. अगर तेरी माँ है तो वो अंकल और मेरे बीच में, तू बीच में मत पड़. और अगर मेरी माँ है तो तेरे बाप का क्या जाता है? Unless it's the third option कि मैं generally माँ चोद रहा है. अब वो गाली थोड़ी है यार, वो तो फेटिश है ना. मतलब वो तो कौन कैटेगरी है, पूरा मिलाप है वो अलग है. वो आंटी बोलती है लेमन जूस पियोगे और कुछ चूस के, तो ऐसा वो देखा है मैंने. मस्त रहता है, होता नहीं है पर देखा है. असली मदरफकर कॉमेडी शो में थोड़ी है, वो तो बोर्ड एग्जाम में आंटी लोग के साथ बाहर चिल कर रहा है. बड़ा स्ट्रेस में लग रही हो, कुछ दबा दे. It's so dumb, man. People seem to think that the life and because that happens every time. Like yesterday, I was doing a college show. Anyone from that college? I doubt it. But I was doing a college show yesterday, okay? And it's the same fucking thing every time. They're like, Akash, please, हम fuck मत बोलना. Fuck, fish कर दो. Fish कर दो. मैं बोलता समझ ही नहीं रहा तुम लोग. A fuck is a tuck, a fish is a fish. तो fish उड़ गया ना? पर मैं नमक खराब नहीं है. मैं पैसा लिया एडवांस में.
मैं जाता मैं बोलता है फिश यू फिश मी। इवन तो मेरे दिमाग में बहुत सवाल है, क्योंकि अगर मदर फिशर है तो किसका माँ मच्छी है? मैं कर देगा, मैं पूरा शो कर देगा। कॉलेज का स्टूडेंट डम है पर इतना नहीं, इवेंचुअली वो लोग समझ जाता है कि मैं जब फिश बोल रहा है मैं क्या बोल रहा है, तो मैं बोलता है फिश मी फिश यू फिश द डीन। बिंदास, मेरे को क्या, मैं तो अगले गाँव चला जाएगा अगले दिन, है ना, लंच मिलना है, मेरे को मजा है। बचेंगे सिर्फ प्रोफेसर और बच्चे। और जब बच्चे क्लास में आवाज करेंगे तो प्रोफेसर क्या बोलेगा, इज दिस अ क्लास और अ फिश मार्केट? लो वो कर रहा है, वो बच्चे के बारे में सोचो, वो 25 लाख का MBA करने आया, वो क्लासरूम कोठा बन गया। बेंच पे मत है, मेरा असाइनमेंट है। तो क्या the problem with like curtailing language is very simple. Like it's like this, okay? If you don't, and you might not agree with this, but hear me out. If you don't say fuck, then how do you talk about fucking? If you don't talk about fucking, then you don't talk about vaginas. If you don't talk about vaginas, फिर मंडराते रहते हो कि कहाँ है ये क्लिटोरस भैया? और क्लिटोरस नहीं पता है तो वल्वा तो पता ही नहीं होगा, वल्वा नहीं पता है तो सर्विक्स का बात नहीं हो रहा है, सर्विक्स का बात नहीं हो रहा है तो आज बताओ आज कितनी औरतों ने सर्वाइकल कैंसर का लिया है वैक्सीन? हाँ, गिन के 6। You get my point? अगर टट्टी का बात ही नहीं करेगा तो सुअर कैसे बनेगा? It's the same fucking logic. You have to say the word to get to the point. But like, I saw sex का बच्चों के सामने। ऐसे उनको याद आ जाएगा 4थे साल इंजीनियरिंग में, हाँ नहीं ये रह गया था करने का डूड। सुधीर चल। है ना, शेम इज जनरेशन ना, ऐसा ऊपर से आता है। लाइक तुम लोग को भी सेक्स का जो भी शेम है वो माँ बाप से एंड से है, क्योंकि उनका जनरेशन तो और भी और शर्माइला है इस बार। मेरे नेबर्स है तो 65 प्लस है दोनों, हर संडे सेक्स करते हैं, हर संडे बरकरार है प्यार भैया, हर संडे सेक्स कर, और इतना प्यारा सेक्स में 3 बजे स्टार्ट टाइम है। मुझे पता है क्योंकि मुंबई में दीवार बहुत पतला है। मेरे कानों ने जो सुना है ना भाई भाई भाई, और मेहनत है पता है 60s में सेक्स करना, क्योंकि तुम्हें 65 के बाद सेक्स बाद तुमको पहले 3 बजे सेक्स है तो 2 बजे वायग्रा लेना है, फिर मतलब 1:30 बजे खाना खाना है, क्योंकि बहुत 1.5 घंटे पहले स्विमिंग के तुम नहीं खा सकते। हाँ, फिर रह के 2:50 को बेटे को धनिया लेने भेजते, फिर 3 बजे आराम होता है। और क्या आराम होता है, ऐसा चलता है उनका, ऐसा 3:13 3:17 तक सेक्स करते हो लोग मस्त। आसमा वो भाई हार्ट अटैक से मर नहीं रहा है, बड़ी बात है। एक दिन बोला 3:30 तक पार्टी किया, मैं दोस्तों को पार्टी दे दिया, मैं बोला भाई दारू तो क्या हो गया, बोला धनिया हुआ है। They should be proud of their sexual prowess, but they are ashamed. चलो खिड़की तो बंद करना है, प्राइवेसी का बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्टन खिड़की बंद कर दिया, पर क्या होता है ना, आंटी चीखती बहुत और उनको इस बात से बहुत शर्म आता है ना। इन माय लाइफ जब भी मैं सेक्स किया और सामने वाला चीखा ना, मैं तो खुश हो गया, क्योंकि सेक्स के टाइम में चीख निकलता है, तो मैं खुद सोचता मैंने ऐसा क्या डाला कि अंकल क्या कर रहे हैं ना, अंकल न्यूज ऑन कर रहे हैं ताकि न्यूज की आवाज से सेक्स की आवाज ढक जाए। इनको फिजिक्स कौन सिखाएगा? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, एक आ रहा है तो दूसरा भी आ रहा है, तो समझ रहे, मैं दोनों एंजॉय नहीं कर पा रहा है। गलत मत समझ, मेरे को जानने का ना देश में क्या प्रोग्रेस हो रहा है। सुना है कुछ और ही न्यूज दे रहा है। तो बेलापुर में बस क्रैश होने के कारण 3 लोगों को बताओ क्या चल रहा है बेलापुर में गाइस, सरकार नई स्कीम निकाली है। आश्रम में अंकल लिफ्ट में मिलते, पता है क्या ऑकवर्ड लगता है मेरे को, तो मुझसे घर पे सब कैसे बनता है, आपके इधर सब आंटी थी की सुनाई दे रही थी वैसे। It starts from childhood. They don't want you to know about the opposite gender only. Like I don't know what the fuck the problem is, but they're like बताने का ही नहीं है, बताएगा नहीं तो awkward होएगा नहीं लाइफ में कभी, फिर अपने आप awkward हो बच्चा पूरी जिंदगी। हाँ, like how many boys here knew कि लड़की लोग का अलग ही रहता है पूजा सब। उनको तो बहुत लेट इन द गेम पता चला कि ये कुछ सीन है। मैं 7 साल का था, मेरे बिल्डिंग में होली खेल रहे थे, एक 6 साल की या 5 साल की लड़की रहेगी, उसको सुसु आया उधर, उसने उधर ही पैंट उतार के सुसु कर दिया। मेरे बिल्डिंग की आंटी है मेरे बाजू में खड़ी है, मैं ऐसा सलवार खींचा, मैं बोला गिर गया।
She had an opportunity to teach me ना कि अलग है उसका. मेरे को बोलती है एक बार आकाश बाल इधर से लंबा हो गया ना कान के नीचे तो गिर जाता है. बोला बट इसका क्या? हाँ वो भी आ जाता है. मैं बोला झूठ मत बोलो आपके पति तो टकले हैं. पर ये बाल वाला हिसाब पूरा जिंदगी मेरे को कंफ्यूज किया है डूड. मैं को देख के जो वियर्ड आउट हुआ है पूरा लाइफ. तो पापा बोल रहे थे डिक्टेटर है बट जाएगा कि नहीं जाएगा क्या पता. आजकल तो जा सकता है ये देश बदल रहा है. ओ बाप रे बाप कुछ नहीं सिखाते यार. डरा देते बिल्कुल. स्कूल में तो भूल ही जाओ. स्कूल में जो हमारे सेक्स के नहीं थे वो टीचर बायोलॉजी के टीचर थे वो. और जिस दिन उन्होंने हमें सेक्स एजुकेशन दिया ना आधे घंटे के लेक्चर में पूरा सेक्स पढ़ाना एक तो उनको. तो मैं इतने साल से अभी भी समझ रहा है. वो जिस तरह उसने समझा हम मानने को ही तैयार नहीं कि उसका एक भी बच्चा उसका है. ऐसा अनकंफर्टेबल आदमी. The penis enter the vagina. Sir, vagina, vagina. उसको हम इतना रैक करते थे जब भी सर वापस आए ना क्लास में हम लोग वेजिना वेजिना. पेरेंटल तो भाई को भरोसा ही नहीं था. कौन सिखाने वाला है माँ बाप में. माँ बाप खुद स्ट्रेस में जी रहे अलग. Is it, how many girls, yeah, because I think this is a young audience, but how many of you girls had the masturbation conversation with your parents? Oh. बाकी लोग I doubt your parents know you can have an orgasm. तुम अपने 55 साल के बाप को कभी बोल के आओ मैं जरा orgasm लेके आ रही है. क्या लेके आ रही है? Orgasm और तुम क्या निकलेगा क्या? चल बेटा एसिडिटी हो गया बेटा. इसको हिसाब कुल दो. बॉयज द कॉन्वर्सेशन वाज नेवर देयर. यू रिमेंबर कोई था किसी ने कुछ बोला या कोई सिखाता नहीं. क्योंकि पता है ना बॉयज का क्या है पता है उनको. हिलाएगा तो सही. क्योंकि बाप भी कभी बेटा था यार उनको पता है. और ये मेरा अभी ऑब्जर्वेशनल जोक मारता हूँ मैं. Men are more interested in sex than women. इतना ही है. Men are more interested. I have a theory why. I don't know whether it's evolution or whether it's upbringing, okay? But it's somewhere in the middle, I feel. क्योंकि मर्द लोग को क्या है ना हम लोग को एक मतलब how do I put this? अगर फीलिंग ही कम है तो जो है वो है. You know what I mean? Like जो भी फीलिंग्स हम लोग को बचपन में रहता है ना हमारे माँ बाप मार के निकाल देते हैं हमें से. मॉल में देखा है कभी माँ लोग बच्चे को मारे बोला और रोएगा और मारेगी. और पहले का तो रो लेने थे ना पहले. Like if you're in a relationship right now, just genuinely ask yourself how many fucking feelings does your guy have in a 2.5 3 feeling में निकल जाता है भाई. भूख लगा हागा हिलाया is not even a feeling to be honest. It's just maintenance at this point. It's just पाइप साफ कर रहे हैं हम लोग. Sometimes I'm about to do it and my wife is like मैं हाथ धो के आती हूँ मदद करने. हाथ धो हो गया बहन हो गया. ये मजे के लिए था ही नहीं भाई. ये तो रात को चड्डी गंदी ना हो इसलिए ये. Boys by the time they hit puberty and throughout adulthood you will notice men ना हम लोग का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है. हमको हमारे फीलिंग्स नहीं पता तो जो भी फीलिंग आया वो गुस्सा. डर लगा गुस्सा, दुखी हुआ गुस्सा. कभी कोहली के फैन को देखा कोहली आउट होता है वो रो भी रहा है और क्रोधित भी है. रोहित का मां कचू ऐसे दोनों. It's all until puberty. By puberty you don't know what you're feeling. You just feel angst and then a new feeling arrives. ये फीलिंग तुम्हारे दिमाग में नहीं. ये फीलिंग तुम्हें कहानियां घूर रहा है. You're also surprised like तुम यहाँ मैं यहीं था. तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया ब्रो. नहीं मतलब Remember that first boner I was so करा तेरे साथ करूँ क्या इधर कुछ भी. थोड़ा सर से हिला दे भाई.
शेखर शेखर So when it comes to puberty, हम लोग हिलाने वाले हैं, हम लोग हिलाने वाले। माँ बाप को पता है कि जो लड़के को अभी अभी जॉयस्टिक मिला है वो नीचे क्रिकेट खेलने तो नहीं जाएगा। पर फिर भी रोकते और डराते। पता हम लोग को क्या डराते हिलाने के बारे में? जस्ट टू डिटर अस, क्या भी कुछ भी झूठ बोलते हैं लोग। हड्डी कमजोर हो जाएगा। मेरे अंकल थे बिल्डिंग में, होता आकाश ज्यादा हिला है ना तो हाथ पे बाल उठता है, हाथ पे बाल। कोई गंजा अंकल ये बोल रहा है, कभी तो घुमा लो। मेरे अंकल ने बहुत डरा दिया। मेरे माँ बोले मेरे को, अगर हिलाया आकाश तो एक दिन तेरा गोटा गिर जाएगा, गिर जाएगा। क्या सूप के अखरोट है, गिर जाएगा। तुम चल के जा रहे हो सूप करके, आशा करो कि स्लोप पे नहीं चल रहे हो भाई। या तो पीछे किसी को रोकने बोलने मनी ना हो भाई, आप मत पकड़ो मत पकड़ो रहते। मामा बोल रहे कांच का गोटी टक 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 होएगा पूरा जिंदगी। इतना मेरा गांड फटा है सुन के। मैं हिलाना बंद नहीं किया फिर। ना मैं बॉक्सर पहनता था, मैं ब्रीफ पहनने लगा। मगर अगर गिरा तो पकड़ लेंगे। सो टीचर से नहीं सीख सकते सेक्स, माँ बाप तो नहीं सिखाएंगे कुछ भी, तो बचा कौन? बचा कौन? एग्जैक्टली ये बाजू में बैठा चूतिया पंकज। और तो प्रॉब्लम है ना, 4-14 साल के बच्चों का नॉलेज बेस ना 1-8 साल के बच्चे से कम है। क्योंकि 8 साल के बच्चे को जो पता है नहीं पता है नहीं पता। ये 4 चूतिए कुछ सही भी बोल दिया ना, नहीं ऐसा नहीं होता, पागल क्या है कुछ भी। ये मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मेरे स्कूल में 6 महीना हम लोग को लगता, 9th स्टैंडर्ड, बच्ची नहीं 9th स्टैंडर्ड, 6 महीना हम लोग को लगा है कि कान में लग डाला तो सही रहता है एकदम। लेट मी एक्सप्लेन। बाजू में बेटा पंकज का बड़ा भाई दीपक। तब दीपक +2 में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है। एक दिन दीपक का फोन आता है पंकज को, बोलता है भाई मैंने वीडियो देखा है, तू मानेगा नहीं, तू मानेगा नहीं। तो भाई मैं फोन काट दूं फिर क्या करूं? डर लग रहा है। बोलता तू सुन, तू मानेगा ही नहीं। अमेरिका का वीडियो है, वहां लोग एक दूसरे के गाड़ में लड़ डाल रहे, बीच में BSNL। पूरा बॉडी पार्ट बदली हो गया यार। और उसके सारे फॉलोअप क्वेश्चंस आर मेकिंग सेंस। बोला जगह कम रहता है, हाँ जगह तो कम रहता है यार। गंदा हो सकता है, हाँ गंदा तो हो सकता है यार। इस चूतिया के चक्कर में मेरा पूरा बैच 6 महीना मुंबई का गर्मी में ईयर मफलर लगा के आ रहा है। कहीं सेक्स ऑर्गन्स ना दिख जाए। ऐसा फ्लिक मारा था ये BDSM। एक बार एक लड़के का ना कान टीचर ने मरोड़ा, उसने कर दिया। मैं बोल रहे क्या कर रहा है? मजे। अबे चूहे चल स्टाफ रूम आ। ओह ये अरे तो वही है, झक मार के घूम फिर के फिर सीखना पड़ता है पॉन से। और पॉन सेक्स थोड़ी है, पॉन थोड़ी सेक्स है, पॉन है। You know what I mean? Like people have sex in porn for the same reason people get married nowadays, for the video. आधा पॉन का लोग क्यों ऐसा टेढ़ा चूद रहा है मेरे को अभी तक नहीं समझ में। क्यों टेढ़ा ऐसा कौन चूद रहा है? इसको डर नहीं लगता है? ये 80 साल होएगा, मुतेगा इधर कमोड इधर बेचो। ऐसा चूद रहा है, ऐसा। ये क्या है? एंगल के लिए चूद रहा है वो। तुम्हें से कितना लोग 25 का नीचे है? आवाज करो एक बारी। तुम लोग शायद रिलेट ना कर पाओ उससे, क्योंकि तुम लोग ब्रॉडबैंड पे खिलाया है, मैं डायल-अप पे खिलाया। तुम लोग को अगर डायल-अप ना पता हो, 1 सेकंड में समझा देता हूँ मैं। समझा एकदम सिंपल है। एक टाइम पे ना एक फोन रहते थे लैंडलाइन करके। हाँ वो ऐसा फोन समझो जिसमें फोटो ही नहीं ले सकते। बताओ सिर्फ
बात करने का, वो पागल लोग। तो वो उसमें से बाहर जाता था मोडेम में, मोडेम से इसमें जाता था, और इतना खतरनाक रहता था ना, अगर तुमने गलती से फोन उठा दिया इंटरनेट चालू हो तो इंटरनेट तुम्हें डांटता था, आवाज आता था 13 kbps का स्पीड, सब पीक हो गया 18 kbps, हम लोग नाचते थे 18। ये माहौल में पॉन डाउनलोड करके दिखाओ अपना ही, आप अपने आप ये सब बफरिंग तो भूल जाओ, स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड वही हो जाता है। 3 GB में पॉन, 3 GB में पॉन में अगर तुम फुल स्क्रीन करो ना, इतना पिक्सेलेट होता है, समझ नहीं आता है लड़का कौन लड़की कौन। आवाज के बल जो भी कर रहा है सही कर रहा है भाई, निकल रही है चिक। ऊपर से पॉन डाउनलोड के लिए ऐसा लेजिटिमेट वेबसाइट या टॉरेंट्स नहीं था, वी यूज्ड टू यूज दिस सॉफ्टवेयर कॉल्ड LimeWire। For those of you who don't know, LimeWire is fairly straightforward. If you have LimeWire, I have LimeWire. I can look at what's on your computer, you can look at what's on my computer. Although I don't know if I want to look at what's on your computer and vice versa. और चाहिए था पॉन। और पॉन तुम सोचो किसी के हार्ड डिस्क पे ढूंढना कितना मुश्किल है, क्योंकि याद है कैसा कितना मुश्किल है पॉन छुपाना, ऐसा फोल्डर में फोल्डर में फोल्डर में फोल्डर में फोल्डर में, है ना, ऐसा रहता है ना, मतलब ऐसा जियोमेट्री, अलजेब्रा, ऐसा साइन थीटा नाम का फोल्डर ही बना दिया मैंने। फिर उसमें भी डिकॉयज है अलग अलग टाइप का, ऐसा एक इधर ज्योग्राफी आ गया, फिर अचानक से प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऐसा खाली फोल्डर पर बना दे बाप उधर, और क्या रहना उसके अंदर जाके एकदम ऐसा बूब्स। LimeWire में प्रॉब्लम था मिसलेबलिंग, ओके, बिकॉज़ क्या होता है, मैं खुद डाउनलोड कर रहा तो मैं खुद नाम रख रहा है, तो क्या नाम है, क्या गाना है, क्या है, समझ में कैसे आएगा। ये डर के माहौल में मैंने एक पॉन फोल्डर डाउनलोड किया, फाइल भी नहीं, फोल्डर 35 MB। यो यो एक हफ्ता लगा बेचो जब हुआ, तो बाप सोच रहा है इंटरनेट का बिल क्या है। The reason I downloaded such a risky big folder is because of the name of the folder. It is the most unique porn name I've ever heard in my life. I've never heard it since, I will never hear it again. The name is John Fucked 19-year-old. वाह, तुम नहीं पढ़ा रेन मार्टिन, मैं समझा। जितना भी पॉन तुमने देखा है आज तक, याद करो एक सेकंड, सारे का नाम हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। नोटिस किया? मैन चीट्स ऑन वाइफ, बॉस बैंक सेक्रेटरी, जॉन फकेड। और बाकी सब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जॉन करके आया है भाई, सीखेगा तो जॉन से ना। प्रॉब्लम है कि मिसलेबलिंग, जॉन फक्ड 19-year-old क्या? क्या है? इंडिया में सेक्स एजुकेशन मिले ना मिले, तुम्हें होमोफोबिया जरूर मिल जाता है। सेक्स के बारे में नहीं सिखाएंगे, पर इतना बता देंगे, अगर बंदा बंदा को पॉपी किया ना तो देखने का नहीं। क्यों? मजा आ जाएगा यार। इंडिया में ये लोग से इतना ड्रॉप करते हैं, लगता है ये लोग हैं थोड़ा। I'm not kidding, dude. Like, ask if you have a gay friend, ask your gay friend how many married guys he's fucked. Just ask once. You don't know how many people are living double lives in this country. We treat it like it's not a fucking issue for you. Trust me, you know somebody who doesn't want to tell you. पूछ के देखो 15 मर्द को, पता चलेगा कौन कितने पानी में और किसका पानी किस में, ठीक है? डर रहे हम लोग। जिस दिन डाउनलोड कंप्लीट हुआ ना, 8 बच्चे आए मेरे घर पे, बोला भाई तुम बर्थडे पे कहाँ थे? एक दो बच्चे कमरे में आके ही तैयार, बोला हे भाई अंदर अंदर, इसका तो अभी सीडी बंद करना है भाई, रुक। जो डरे हम लोग भाई।
ऐसा पहला फाइल खोला, देखा और जो रिलीफ. Thank God. John is fucking a 19-year-old girl. जॉन घोड़ा था. हमें कौन समझाएगा कि ये नहीं करना होता है? इधर तुमको पता है ना ये नहीं करना होता है. घोड़े नहीं चुनने और उनसे चुनने का भी नहीं, दोनों. घोड़ा क्या कंसेंट देगा, उसका हाँ और ना दोनों है. तो समझ रहे हमारा क्या कांड पड़े. तभी ऋतिक लॉन्च हुआ था. एक बाजू ऋतिक का फिजिक देखो, एक बाजू हम बच्चे डर गए. हम सारे बच्चों का मिला के पावर रेंजर की तरह एक लड़ बनाओ ना. ये फिर भी डिसाइड करना पड़े लंबा बनाना है कि झाड़ा बनाना है. जॉन देवेला भाई, आकाश ना ये बॉडी बनेगा ना ये उगेगा. किताब पढ़. आई एम सो ग्लैड मैं पर्सनालिटी बनाया. अब सीरियस डूड, बिकॉज़ एज यू ग्रो अप एज अ गाय ना, अनलेस यू रियली पे अटेंशन टू इट ना, तुम भी इसी वाले स्कैम में घुस जाते हो. लाइक मर्दों का पूरा वजूद ही ये बन जाता है, कितना कमा रहा है, कितना चोद रहा है, कितना कमा रहा है, कितना चोद रहा है. और अभी तो रिसेशन चल रहा है. सो and it's damn stupid to me. Like it's such a weird way of going about your life. कि like मैं दुनिया चोद. यार भाई तू गेंगिस खान कौन बनाया तेरे को? हाँ तेरा सीड बेस्ट सीड, हाँ GMO सीड, वो क्या आएगा तू हर जगह. ये सब में मैं नहीं मानता है. Yeah, dude, like men will start, like, because when the only thing you know about women is that eventually you're supposed to have sex with them and you make babies with them. So obviously you'll start thinking of them as like sex objects, right? Like, कि हाँ इससे तो चोदने में होता है. But तुम मानो ना मानो, मर्द लोग औरतें जिंदा है बाकी टाइम. हाँ देखो आइए इधर बैठिए, सांस ले रही है, बोलो. अंदर सिर्फ सांस ले रहे हैं अभी. तुम मेरे साथ हो, मैं भी. It's so stupid the whole thing. Like every guy is obsessed with their body count. उनको अलग-अलग लोग के साथ 24 घंटा सेक्स करना था. मैं ये शर्ट में इसके साथ, वो शर्ट में उसका. अब ये मेरे को डरा देता है ये concept. I don't want to do something intimate with somebody I don't know intimately. You know what I mean? Like I don't want you to do what you think I like. This is the last guy. Does that make sense to you? You know, it's women teach you about your own feelings if you give them a shot. Like if you get into a relationship for long enough and you start realizing that sex is not the whole point of things. And don't get me wrong, like मेरे को आज किसी का relationship बिगाड़ना नहीं है, तो ये मैं ऊपर देख के बोलने वाला है. But by the time we are adults, no ladies, हम लोग ज़्यादातर मर्द का relationship, sex और प्यार का अलग होता है. मतलब तुम लोग के लिए प्यार is the destination. हमारे लिए प्यार रास्ते में पड़ता है. For us it's more like, I love you, चला गया, चलो. But it's when you stop looking at each other as sex objects that you realize कि oh there's so much more to enjoy about one another. बात भी कर सकता है, सीख सकता है कितना कुछ. डूड मर्द लोग को बेसिक चीज नहीं पता यार. तेरे को पता है औरतें पीरियड्स में क्या कर रही है? अंडे दे रही है वो. अंडे, उसमें भी ब्लड क्लॉट होता है. It was one of my girlfriends who taught me that. पता है how she taught me? ये ऐसा कोई थर्ड पार्टी नहीं सिखा सकता. मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, अचानक पैड लेकर ऐसा, ये देख, और यार ऐसा बोला, मैं जो सांप का बच्चा किधर से आ रहा है तेरे में? We start exploring each other's bodies. We realize there's more to it. Like for most men, boobs are just boobs. चुतने का रहता है, दबाने का रहता है, चुतने का रहता है, boobs. But next time you're hanging out with your girlfriend, when she comes out of the shower, just walk up to her and ask first, and then just do this one thing. Just try this, okay? Just go. क्या मजा आता है, guys? कभी-कभी मेरी वाइफ नहा के आती है ना, मैं पीछे आता हूँ, मैं तेरा ब्रा बनेगा आज. कौन सा ब्रा चाहिए तेरे को? पुश अप? स्पोर्ट्स ब्रा. नहीं तू पैंट कपड़ा में खड़ा है. Even with the male body, like there are so many things women don't realize. Like ladies, did you know that the penis can float? Yeah.
अपने बंदे को नंगा करके बट्टा में डालो एक बारी। ब्रो ऐसा है ना, ऐसा हो ऐसा। ऐसा लगता है हाथी का सूंड सांस ले रहा है एक सेकंड। You know, there's an evolutionary reason for that, right? Yeah, it's an evolutionary thing. So, okay, so the thing, if you're in like a water body or like if you're in the ocean or wherever, and if you pull on the dick, तो गोटे का राफ्ट बन जाता है। तुम लोग क्या सीरियसली लेना चाहते हैं? तुम लोग सोच रहे हाँ नहीं, लियोनार्डो बेमतलब मर गया टाइटैनिक में यार। I realized the first time, like, once you get past the sex is when you can fall in love. Like, the first time I realized I was in love was this one time. I was, same ex. He was spooning. Spooning पता है सब? 2 चम्मच चिपका के. 2 चम्मच चिपका के, वो छोटा चम्मच में बड़ा चम्मच, दोनों नंगे मस्त सेक्स करके सो गए. और ठंडक भी है, तुम लोग ऐसा. पता है ना सब लोगों में क्या बात कर रहा है? जिसका ऐसा सोने का, फिर हाथ अटक जाता है, माँ की चुप पे, खून नहीं जा रहा है. सोचता है ये भैंस को मैट्रेस ही काट दूं. वही वाला. तो क्या हो गया ना, रात को मैं उठा और मैं अकेला नहीं उठा था, मेरे को गर्माहट फील हो रही थी नीचे. अब मेरे को लगा देखो, अगर गेम ऑन है तो गेम ऑन है, पर चेक कर ले कि ठीक से गेम ऑन है कि नहीं. जो ऐसा वो आधा में रहेगा ना, वो नींद में है, ये भी नींद में. मैं ऐसा दीदी को बोला ऑफिस जाने का, देखो तुम्हारी तो है ना, अब तो मेरी भी है. So I did the thing, you know the thing that guys do, you know the thing you do to check if your dick is hard. You just do the little, yeah, you just push it a little bit just to see अगर oh inside. तो मैं वो कर ही रहा था और उतने में गर्मी मेरे पेट तक फैलने लगी. मतलब मेरा पेट कभी खड़ा नहीं हुआ यार. मैं चद्दर हटाया, मैं अंदर देखा, तुम लोग मानेगा नहीं, मेरा खड़ा नहीं हुआ है, वो मेरे पे पादी है. That's true love. That's true love. That's true. Fuck off. What is come on my face, baby? बाबू मेरे पे पाद दे. तेरी बू भी मीठी लागे रे. And we also take all our tragedies in the terms of sex. Like when I got dumped by the girls that I was dating, I was very heartbroken, and all my friends, their only solutions were sex related. None of them were feelings related. I'm like, पर दर्द का क्या? Old mark. I'm like, नहीं. I remember this one friend मैंने खरीदू, जिसकी शादी से मैं दुबई से आया था, वही चूतिया. एक बार मेरे घर पे आया, मेरा ब्रेकअप के बाद मेरा फोन लिया उसने, टिंडर डाउनलोड किया, टिंडर गोल्ड अपने क्रेडिट कार्ड पे डाला, मेरे को फोन वापस दे रहा है. नॉन जोकिंगली, एकदम सीरियसली, आंख में आंख मिला के मुझे कहता है, जा चूत. जा चूत. मैं सिमरने में चूत. What the fuck is जा चूत? तेरे को क्या लगता है मैं दरवाजा खोलता है लोग लाइन लगा के खड़े हैं? आकाश भाई चलो यार, अरे जल्दी. अरे हिला हिला के गोटे गिर गए तुम्हारे इंतजार में, चलो. इसलिए तो मिसकम्युनिकेशन होता है. मिसकम्युनिकेशन होता है, फिर गड़बड़ होता है, गड़बड़ होता है तो कोई बात नहीं करता है, फिर मीटू जैसा होता है, फिर सबका लोग तो इसको कैसे हो गया. अरे भाई कोई किसी को कुछ पता ही नहीं रहता इतने साल से, क्लियरली कुछ ना कुछ तो फक्ड अप हो ही रहा था ना. सबका कान फट जाता, मैं ये बात करता. तो मेरा भी कान फट गया था जब मीटू होता. मेरे इंडस्ट्री में हुआ था भाई, मेरे को खुद भी नहीं पता था कि इतना कुछ हो रहा है. Like I'm sure most of you guys, if something happened in your workplace or in your college, you didn't know it was going on, right? You didn't fucking know. But that's not the problem. The problem is, why did I not know? Did I not know because it was well hidden? Or did I not know because I didn't care to know? Fucks with you, right? हाँ, तुम लोग भी जाओ ना रात को बेंचों में, अकेला अकेला क्यों करो ये सब? मैं सोच रहा हूँ ये क्या होता है, उसका क्या होता है. मैं तुम भी सोचो.
जरूरी है सोचना, बिकॉज सोचेगा नहीं तो फिर कोई बदला भी नहीं आएगा ना। मीटू के बाद मेन चेंज आई हैव सीन इन मैन इसलिए लोग ब्लो जॉब नहीं मांग रहे आजकल। हाँ डूड, मर्दों का गांड पड़ गया। मर्द लोग ऐसा सामने से हो तो नहीं, अब स्ट्रैटेजी अलग है। अब हम तुम्हें रैंडम टाइम पे याद दिलाते हैं कि हमें ब्लो जॉब पसंद है, बस बिना वोटिंग गए हो तुम। अरे बेबी वो जॉब मार्केट से याद आया, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। He's like the ball, his balls are in your coach and racket also. जा मुझे जो करना है। If anything, I have learned all the ways not to ask for blowjobs in the last few years. You know, some very basic ones I'll go over with all of you. Because I'm sure there are 18 साल के बच्चे इधर। लॉन्डो सुनो, कोई रास्ते पे चल के जा रहा है, ए मैडम, नहीं गलत, it's the wrong way to ask for a blowjob. Okay? तो ऑफिस कैंटीन में खाना खा रहा था, और कुछ लेंगे मुंह में, गलत। कॉमेडी तो ट्राई करना ही मत, ऐसा आके बोल दो नंगे पधारो हमारा देश को। कोई भी चूज कर दे। Personally, I don't like to ask only. That's my strategy. I don't ask. My logic is very straightforward. मेरे को लगता है अगर लड़की को देना है और लड़की को आता है, वो दे देगी। हाँ। Me too has taught me. You have agency, right, ladies? You have agency. You can do whatever the fuck you want to do. You want to suck a dick? Go suck that dick. Okay? This is not a man telling you what to do. This is a man saying, "You go, girl." थोड़ा पसंद आया, डाल दो मुंह में, ऐसा उड़ करके छोड़ दो, कोई स्ट्रेस नहीं है, डरने का नहीं। हाँ। ये बंदे को पूछ लेना एक बार प्लीज, वरना सेंड दोनों बाजू होता है ना। अगर बंदा ना बोले तो ज्यादा स्ट्रेस मत लो, एक बार लौड़े को पूछ लो। बहुत रेयरली लड़ना बोलते हैं, उनको ज्यादा बात। थोड़ा सर दबा देगी। मेरे को ये वन नाइट स्टैंड वाला हिसाब कभी लाइफ में जमा नहीं। मैं हुकअप कल्चर बिल्कुल मेरे से ना हो। मैं नहीं आलसू, मैं दिल आ जाता है चीजों में, मेरे को नहीं होता करने से। मुझे डर बहुत लगता है, सच बताओ तो मैं बहुत मार खा लिया है। मैं बता रहा था ना कि और व्हेन यू हैव सेक्स विद समवन यू आर गोइंग बाय विद द लास्ट गाय, बराबर। अब उसको क्या पसंद, मेरे को क्या पता। और यहाँ पे कुछ भी रिप्लेसेबल नहीं है। मेरे को इतना दांत घिसा है। हाँ तो बाहुबली है मेरा लंड, तुम लोग को आइडिया नहीं है। कभी कोनी खाया? कोनी टेढ़ा भी नहीं, टेढ़ा तो सीधा कोनी। आई स्वेयर, मैं आंख मेरा अंडरटेकर बोलते नहीं, जॉन सीना निकल। यू आर गोइंग बाय द लास्ट पर्सन्स प्रेफरेंसेस, बराबर। लास्ट पर्सन को क्या देखो, स्पैंकिंग सबको पसंद है। वाह वाह, स्पैंकिंग वाह, फड़क फड़क फड़क, मजा आ गया। थोड़ा मारू थोड़ा मार, मजा आ गया भाई, वो बढ़िया। पर कहाँ कहाँ, क्योंकि बीच हैंड जॉब गोटे पे फपा, समझ रहे हो? वो ओपा, फोरहैंड एंड बैकहैंड, मेरे साथ टेबल टेनिस खेला गया है। ऊपर से पूछ रहे मजा नहीं है, किसको आ रहा है मजा इसमें? नहीं, वो पिछले वाले का टक टक हो रहा था, बोले नहीं। तो आता है और देना है तो दो, वरना देख लो। दोनों चीज जरूरी है, देना नहीं आता तो लेना नहीं है, सिंपल चीज है। I don't want to put onus on a girl by asking anyway. It's too much stress. Why would you put anyway? सबको पता है ना onus क्या है? O-N-U-S. That's the word we're going for. Not anus, not funus. Onus. Onus is like putting the pressure on somebody else. Like घर पे होता है ना कभी-कभी दादा दादी के साथ. Not like that. तुम क्या प्रेशर डाल रहे हो तुम लोग? जायदाद से नहीं। ऐसा तुम दादाजी को पूछा, दादाजी चाय पियेंगे, दादाजी क्या बोलते हैं? अरे अगर चाय बनी है तो I don't want to put a girl in that situation of अगर निकाल ही लिया है तो। I'm a big fan of going down on women.
Yeah, I'm a big fan. I'm a big fan of, like, I want to get better. You know what I mean? My logic has always been, why fuck new people every day when you can find one person and train them? And vice versa, obviously. It's like any video game, dude. You remember the first time you played Tekken? You sucked at Tekken. तुम्हें नहीं पता था क्या बटन दबाने का रहता, सामने वाला तुम्हारा गांड मार दिया. तुम इतना स्ट्रेस में सेम मिल सकते, तुम इतना स्ट्रेस में क्या दबाओ, क्या खींचो, क्या चाटू. 18वीं बार. 18वीं बार पीछे मोनोलॉग चालू है. 3, 2, 1. 4 मिनट में पीछे से फिनिशर. I'm a big fan of going down on it. I'm a huge. It's like one of my top 4 favorite things in life. It's my top 4 favorite things. It's like it's cricket, music, comedy, pussy. Yeah, not in that order. It changes seasonally. हाँ भाई, summer में यही order सही है. Because I research. You know what I mean? I put in the effort. If I go down on you, irrespective of gender, right? If I go down on you, gender has no perfection. ठीक है? If I go down on you, अगले दिन तुमको Google feedback form आएगा. मुझे जानना है कि कहीं थूक ज्यादा कम तो नहीं हो गया, मेरा टंग का डायरेक्शन इन्फिनिटी रखूं या प्लस माइनस रखूं, कहीं मेरी दाढ़ी से आपके झांगों पे गलगली तो नहीं हो रही है. सॉरी, मैं रिलेट नहीं करना चाह रहा हूं, पता नहीं क्यों हो रहा है ये. एक बार मैं बंदे को पूछा कि तुम ब्लोजॉब कैसे मांगता है, बोलता कुछ नहीं ब्रो, मेकआउट करते वक्त सर पे हाथ रख के देखने का. बोला क्या? गांडू आशीर्वाद नहीं देने गए, सफल रहो बेटा. I'm very serious. I go down because I know what women go through when men are going down on them. Men are very lazy when it comes to this shit, dude. Men are the worst when it comes. Men क्या नकली स्टोरी दे रहे हो लोग घर पे, तुम लोग को आइडिया नहीं है. वो लोग तुम्हारे साथ जो भी सुलूक कर रहे, उसके बाद घर पे तो कॉकीनेस ही आ रहा है एकदम. ब्रो क्या पैशन में आ गई थी ब्रो, पूरा स्पॉट पीछे कर दिया उसने ब्रो. सो गई थी वो ब्रो, सो गई थी 3:30 बजे. डूड, उसको कल TCS जाना है, तू क्या कर रहा था? नहीं ब्रो, पैशन था ब्रो, मेरा बाल ऐसा नोचा, ऐसा खींचा, वैसा खींचा, ऐसा खींचा. बोला वो तेरा सर डायरेक्ट कर रही है. 8 मिनट से झांगे चाट रहा, लोड़े ऊपर आ. चौक कर दे, मार डालेगी तेरे. But the attitude is some fucking winning attitude, dude. Have you seen a guy when he's trying to go down? It's like he's getting ready for an Olympic sport. ऐसा भी नहीं कि कुछ सादा काम कर रहा है, ऐसा एकदम ऐसा. कौन सा वाला चाटने का था एक्चुअली? आगे पर्दे हटा रहे कि कहीं कुछ मिल जाए काम का. और अगर गलती से लड़की ने आवाज कर दी, गलती से लेडीज, इफ यू जस्ट वाज तो जहां पे वो निकले है ना, उधर सारा पोर्शन खत्म कर देगा याद में. ला 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 ला. You guys are a good crowd, I must say. Usually ये शो करता हूँ ना, मेरे को लोग को बोलना पड़ता है कि अगर ज्यादा लग रहा हो तो ऐसा कान टाइट कर लो. बस के सिनेरियो बात दोगे, कोई बात नहीं. और कुछ हो गया तो भी सीट खाना है, रिलैक्स. अगले शो का प्रॉब्लम. But jokes apart, guys. One of the big reasons I keep doing these jokes. And I feel like I have to keep it. Listen, I know there is an upper limit to how much you can get in life doing this, okay? मेरे माँ बाप कितने ही proud होंगे. तुम्हें लगता है मोहल्ले की आंटी गॉसिप कर रही है, ओ मेरा बेटा IIT में, और मेरी माँ कह रही है मेरे बेटे के मुंह से लैंड सुना है आपने पहले? नहीं. The reason I do this is because I feel like somebody needs to do it.
अगर कोई भी नहीं करेगा तो ये टॉपिक ही नहीं रहेगा, और टॉपिक ही नहीं रहेगा तो बात ही नहीं होगा। और मेरे लिए इट्स अ वेरी शॉर्ट। सब अपने लाइफ में सब लोग हगे, मैं भी सब में हग के सीखा है, तो हाँ मैं तो मोबाइल पे रहता नहीं। But for me, it's very straightforward. Either you have to be okay with becoming uncomfortable once in your while in your life, you know, and listen to the shit, or never be uncomfortable in your life, and that's cool. कान में डालो लड़ने एक दूसरे के, मेरे को क्या प्रॉब्लम? क्या अबाड़ प्रजा? When I was 18, I saw all the horriblest things that can happen if you don't take sex education shit seriously. Not herpes. This is a true story for someone. 3 of my female friends, when I was 18 years old, 3 of my female friends got pregnant in the same month. I don't know why I said female friends actually. मेरा कोई मर्द फ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं हुआ है अभी तक, मैं ही सबसे करीब है। और कभी कभी लगता है लात मारता है, फिर याद है नहीं कुल्चा है। 3 of them in the same month. The only reason 2 of them got tested was because the first one was like, "Hey, मेरा तू pregnant है," तो like, "हमारा भी मिस हुआ है 3 महीने से." I think एक का 1 महीना था, एक का almost 2 महीना था। The reasons why they got pregnant were really scary to me at that stage in my life. Like the first one was the very scary. She was like, "Akash, the condom tore. What do I do?" And I mean, honestly, ladies, तुम क्या ही करेगा? Condom फट जाएगा तो मर्द तुम्हारे हाथ में ही है। मतलब yeah, there's a sound that comes when the condom tears. There's a very small करके आवाज आता है। You have to hear, you have to train for it. समझ रहे हैं? You guys, you have to train for that shit. तकिया ले, दोस्त को बुला, सुन। पैंट उतारने की जरूरत नहीं। दोस्त को बुला, तकिया ले, and you start going through the motion. दोस्त को हॉल में खड़ा कर, उसको बोल हॉल से एक बार अचानक कभी भी बीच में, समझे? अभी जैसे तुम eject. Okay, you try this in all the poses. तुम लेट लो, तकिया ला हुआ। You can try this as a couple, ladies. तुम लोग ऐसा कूद के बैकफ्लिप मारो, इसका रील बनेगा। ये बढ़िया ट्रेंड है यार। Second friend got pregnant because of a very big misunderstanding. I don't know how many of you know about the contraceptive pills here that are available. There's a regular contraceptive that you can take, and then there is emergency contraceptive. Do you know about emergency contraceptive, bro? Yeah, good. I'm proud of you. समझा? बता कैसा लगता है, क्या करने का रहता है? हाँ, it's a good start. इसके बाद काम करना पड़ेगा। भाई तू रहने। भाई मिसइंफॉर्मेशन ना हो जाए, बच्चे बहुत चुके हैं। तेरा गलती नहीं है, तू कोशिश सही कर रहा है। जितना एक्यूरेसी से तू ये डिफाइन कर रहा है, उतनी एक्यूरेसी से तू ग्रेविटी भी डिफाइन करके दिखा। वो खींच रहा है। If you have unprotected sex, avoid it. If you have unprotected sex and you are worried that there has been some transfer of fluids in words, incoming. I'm coming in. So you have, that's when the countdown timer starts. You have 72 hours within which you have to take the emergency contraceptive pill. I don't understand it fully. What I understand is that it's a very big blast of hormones. It's like a bulldozer. Like it's like doesn't let conception happen. It's very important within 72 hours. I thought, money हुआ, ऐसा लौड़ा की मत कर। ठीक है? उतने में conception जो है ना, गांड लग जाएगा तुम्हारा। ले लो जल्द से जल्द। ठीक है? This is the straightforward process. Sex किया within 72 hours, दवाई लिया। Simple? ऐसा नहीं है कि दवाई लिया फिर 72 hours फुला चौक क्या है तुम? Dangerous misunderstanding. Third pregnancy was the weirdest one. I asked my friend, I said, what happened? She said, मैंने मेरा usual contraception किया. I said, वो क्या है? She said, मैं घर आई और फिर मैंने skipping rope लिया. इधर डाला? चुतिये डाला नहीं. मैं घर आई और मैंने skipping rope किया और सब कुछ उससे गिर जाए।
ग्रेविटी पे इतना भरोसा भाई 9 महीने में बच्चा गिरेगा। None of the guys who are responsible made it to the abortions. None of the fuckers had the balls to make it for the abortions. Even though abortions are fucking horrible on the body. They're horrible on the mind. They're horrible for fucking years to come down the road. Fucking none of the fuckers went. So I ended up being the kind-hearted friend. The naive, kind-hearted friend. Who took 3 girls. To the same gynec in the same week. आपको कभी आंखों से पूरे क्लिनिक ने भड़वा बुलाया? That's all the time I have, you guys. You've been fucking great. Thank you so much. करने वाला but not stuck on to staccato लगा तो मैं भी गाने वाला मौका मिलते देखो कैसे मैं जाने वाला रे आओ सब देखो मेरा कल वो भी आने वाला शब्दों के और लफ्जों के कब से मैं छुड़ा ये वाला डालना ना डालना थोड़ा लीगल में है ना, तो इसलिए ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो है ना मैंने नेस्टी के एंड में हर शो में किया जब मुझे ऑडियंस पसंद आए। आज बस यही एक बाकी तुम लोग ढंग का है, मैं देगा तुम्हें फीडबैक फॉर्म कर। अभी तुम सोचो मैं खुद ऐसा सेक्सुअली अवेयर इवॉल्व आदमी है ना, तो मेरे को तो ये सब प्रॉब्लम नहीं हो जाना चाहिए ना, बाकी मर्द लोग का टुच्च प्रॉब्लम और होता है मेरे को भी जेलसी सेक्सुअली होता है, पता नहीं क्यों। मेरे एक्स के साथ ब्रेकअप हुआ, तुम पता है इतना सारा लॉन्ग रिलेशनशिप था, मेरा दिल भी टूट गया, सही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खुश मैं खुश सब खुश। डर एक ही कि वो ना प्रतीक से सेक्स कर ली। Now I know you don't know who Pratik is, but I hope you understand that every relationship has a Pratik. वो बंदा जो बस राह देख है ना, तेरे रिलेशनशिप में एक प्रतीक। अगर तुम एक प्रतीक को याद नहीं कर पा रहे हो तो तुम ही हो वो प्रतीक। मेरे दिल की आशा है तुम गू खा के मर जाओ, क्योंकि ये मादरचोद जो फील्डिंग जमाते मैं जो स्लिप माफिक मैं नीचे से पकड़ लेगा, मैं पार्टी में एंट्री करता है प्रतीक ऐसा मुड़ के देखता है क्या साथ में आया चल बाद में ट्राई मारेगा मैं। मादरचोद प्रतीक। अरे भाई ये मेरे को ऐसा कोई नहीं, किसी के साथ भी सेक्स करे दुनिया में कोई स्ट्रेस नहीं, बस ये एक मादरचोद, ये प्रतीक भोसड़ी का मेरा पूरा रिलेशनशिप उसकी चाटने को रुका है। वो इतना चांस मारा ये आदमी ने, एंड आई नो आई एम ट्राइंग टू से इट, लाइक वो फ्रस्ट्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है, ये लॉजिकल चीज नहीं है, इंसान ठीक ही होगा, मेरे को क्या पता, मां चुदे उसकी डूड नहीं, एटलीस्ट आंटी को मजा आया लाइफ में। मैं बेटा इतना भोसड़ी का चूतिया है, फक प्रतीक। इनफैक्ट वो चलते उसका गोटा गिर जाना चाहिए एक दिन, जस्ट ऐसा एक्स के साथ सेक्स कर रहे हो किधर गए, मैं सब कितना मारेगा शॉट। It's unrealistic, I know, but it's a real feeling, right? You get where I'm coming from, right? मैं पागल नहीं है, right? मैं पागल है, पागल तेरे खुन्नस बनता है कि नहीं? वाइफ को बोल रहा चल ना मेरे घर से वर्क फ्रॉम होम करते, हट भोसड़ी के, डंडा मारूंगा तुझे। सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, पर कैथारसिस के लिए क्या हम सब एक बार साथ में मिलके फक प्रतीक बोल सकते हैं क्या? है ना, साथ में करेंगे, सबको अच्छा लगेगा, तेरे को भी अच्छा लगेगा, है ना। तुम में से कोई प्रतीक है तो तुम्हारे बाप भूल जाएंगे, क्या बता। ऑन द काउंट ऑफ 3 1 2 3 फक प्रतीक। कब से मैं छुड़ाने के कस्प पे नहीं, कस्प में मैं हूँ सजिटेरियस मिलेरियस वेरी टीडियस स्टिकी लाइक ग्लू कॉल मी चिपकू, क्योंकि मैं ना छोड़ू जो भी एक बार पकड़ू देख डूड आई किड बट आई एम सीरियस, आई कीप juggling words jumbling words cunnilingus, I mean I'm a cunning linguist, cunning dim with these subliminals to the bounce of these dim words, मेरा flow
मौके से on the go बदले बदले फिर मैं थैंक यू, नमस्ते, पहुंच गए तुम एंड ऑफ द स्पेशल तक। थैंक यू सो मच, तुम इधर तक आए, मेरा दिल जीत लिया तुम लोग। अगर इधर आए गए हो तो एक दो चीज अभी सुनी लो, लास्ट का चीज। मैं दोस्त का स्टूडियो मांग के माइक नकली लगा के इससे इधर इतना ही बोलना है कि थैंक्स यार, जेन्युइनली थैंक्स। अगर अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों को दे दो, बहुत अच्छा लगा तो कमेंट मार दो। अगर और भी अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में जाके डोनेशन लिंक है, उधर जाके थोड़ा पैसा मार दो मेरे मुंह पे, ताकि मैं अगला वाला बना दूं, है कि नहीं? आइदर वे थैंक यू फॉर मेकिंग इट हियर। प्लीज सेंड इट टू फ्रेंड्स। इतने सारे सबटाइटल लगाए हैं, इतना देखा, लौड़ा फर्क नहीं पड़ रहा इससे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू। On that floor that is too fine, buckets up or a true crime. But if you can do it right, cleaning time, it's cleaning time.